یہ اس زمانے کی بات ہے جب عرب کے سماج میں ایک خاص دستور رائج تھا۔ جب بھی کسی گھر میں نیا بچہ پیدا ہوتا تو شہر کے لوگ گاؤں سے آنے والی دائیوں کے حوالے اسے کر دیتے۔ مقصد یہ ہوتا کہ بچہ کھلی فضا میں پرورش پائے، صحت مند اور مضبوط ہو، اور سب سے بڑھ کر خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ یوں ہر سال الگ الگ گاؤں سے دائیوں کے قافلے مکہ مکرمہ آتے۔ وہ ایک ایک گھر کا حال پوچھتیں اور تلاش کرتیں کہ کہاں نیا بچہ پیدا ہوا ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس سال بھی دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ کچھ دیر میں کئی دائیوں نے حضرت عبد المطلب کے گھر کا بھی رخ کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے تو وہ آگے بڑھ گئیں۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یتیم کے گھر سے شاید انہیں کوئی مالی فائدہ نہ ہو۔ یوں ایک کے بعد ایک دائی آتی رہی اور بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے آگے بڑھتی رہی۔ گویا کسی کے نصیب میں یہ سعادت لکھی ہی نہ تھی، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ پہنچیں تو دیکھا کہ باقی سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل چکا ہے، اب صرف وہی تھیں جن کے پاس کوئی بچہ نہیں۔ پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک یتیم بچہ ابھی باقی ہے، مگر سب عورتیں اسے چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں ایک ہلکی سی کسک پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں کہ میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں، جبکہ باقی سب عورتیں بچوں کو لے کر جا رہی ہیں۔ کل کو مجھے تانا دیں گی کہ تم خالی کیوں لوٹ آئیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث نے نرمی سے جواب دیا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر اور برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچیں۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک نورانی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی اور آپ کے نیچے ہرے رنگ کا ریشمی کپڑا بچھا ہوا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے تھے اور آپ کی سانسوں کے ساتھ مشک و کستوری کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جوں ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھایا اور آپ کی دونوں آنکھوں کے بیچ پیار کیا۔ پھر آپ کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت لی اور آپ کو لے کر قافلے میں آ گئی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ نے دائیں طرف سے دودھ پینا شروع کیا۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہیں پیا بلکہ دائیں طرف سے فوراً پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت رہی کہ آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے اور بائیں طرف سے میرا اپنا بیٹا دودھ پیتا رہا۔ اس طرح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے انصاف کا عملی نمونہ پیش کیا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو وہ اس قدر تیز ہوا کہ پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حالانکہ پہلے تو وہ اپنی کمزوری اور مریل ہونے کی وجہ سے سب سے پیچھے رہتا تھا۔ ان کی خواتین ساتھی حیرت سے پکار اٹھیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟
तुम्हारा खच्चर इतना तेज कैसे हो गया? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जो एक एक कदम बड़ी मुश्किल से उठाता था? हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, बेशक ये वही खच्चर है, मगर अल्लाह की कसम इसका मामला आज कुछ और ही है। यूं काफिला चलता रहा और सब बनु साद की बस्ती पहुंच गए। उन दिनों ये इलाका सख्त खुश्क साली और कहत का शिकार था। लोग बारिश ना होने की वजह से परेशान थे, मगर हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ आए तो अल्लाह ताला ने हमारी बस्ती पर अपनी रहमत नाजिल फरमाई। जिस दिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहुंचे, उसी दिन आसमान से बारिश बरसने लगी। बारिश ऐसी हुई कि हमारी जमीन सरसब्ज हो गई, खेतियां लहलहाने लगीं और हर तरफ खुशहाली आ गई। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि उस शाम जब हमारी बकरियां चरागाह से वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि इससे पहले वो दूध ना के बराबर देती थीं और वो भी बड़ी मुश्किल से निकलता था। उस दिन हमने दूध दोहा तो हमारे सब बर्तन भर गए। ये देखकर हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके घर वाले समझ गए कि ये सब बरकत इस बच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। जल्द ही ये बात आसपास की औरतों में भी फैल गई, मगर हमारे घर में हर तरफ बरकत ही बरकत नजर आने लगी, जबकि दूसरे लोग ताज्जुब में पड़े रहे। इसी तरह 2 महीने खुशहाली और रहमत में गुजर गए। 2 माह के अंदर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने फिरने लगे। जब आप 8 महीने के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आने लगीं। 9 महीने की उम्र में तो आप बहुत साफ और वाज़ेह गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बेशुमार बरकतें जाहिर हुईं। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घर ऐसा ना था जहां से मुश्को कस्तूरी की खुशबू ना आती हो। सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। फिर जब आपका दूध छुड़ाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बहुत तारीफ है और उसके लिए सुबह शाम बाकी है। फिर जब आपकी उम्र 2 साल हुई तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए, क्योंकि इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को वालिदैन के हवाले कर दिया जाता था। हम तो आपकी बरकतें अपनी आंखों से देख चुके थे और दिल की आरज़ू थी कि आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। इसलिए मैंने आपकी वालिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बात की और अर्ज़ किया, आप हमें इजाज़त दे दें कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कि कहीं मक्का की बीमारियों और उसकी आबो हवा का असर आप पर ना हो जाए। जब हमने हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बार बार इसरार किया तो वो मान गईं और यूं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा अपने घर ले आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हो गए तो घर से बाहर निकलकर बच्चों को देखते, वो खेल रहे होते मगर आप उनके करीब न जाते। एक रोज़ आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान ये क्या बात है कि दिन में भी मेरे भाई बहन नज़र नहीं आते? आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनें अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आपको बताया कि वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं और शाम के बाद वापस आते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तो फिर मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे, खुश खुश जाते और खुश खुश वापस आते। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे डर से सहमे हुए दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलें वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। मैं दौड़ती हुई वहां पहुंची तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। आपका रंग पीला पड़ गया है और चेहरे पर जर्दी छा गई है। ये इस वजह से नहीं था कि आपके सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ हुई हो, बल्कि फरिश्तों को देखने की हैबत और रौब से ये हालत थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या हुआ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए, दोनों ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया।
उसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और उसमें से कोई चीज तलाश करने लगे। आखिरकार उन्हें वो चीज मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकालकर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज थी। इस चीज के बारे में एक दूसरी रिवायत में वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाने जैसा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असर डालता है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर ले आए। उस वक्त मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा, मुझे डर है कि कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए बेहतर है कि इसे उसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्के के बालाई इलाके में पहुंची तो अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैं हक्का बक्का रह गई। दिल घबरा उठा और परेशानी की हालत में दौड़ती हुई मक्का पहुंची। सीधी आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास गई और कहा, आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जब मैं मक्के के बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गायब हो गए। खुदा की कसम मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब फौरन काबे के पास खड़े हो गए और आपके मिलने के लिए दुआ की। फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। यूं दोनों तलाश करते करते तहम्मा की वादी में पहुंचे, जहां एक दरख्त के नीचे एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने करीब जाकर पूछा, लड़के, तुम कौन हो? चूंकि उस वक्त तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद निकल चुका था और तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब फौरन पहचान न सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू भर आए और वो बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान हो, मैं ही हूँ तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ रवाना हुए। घर पहुंचकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़बह की और मक्का के लोगों को दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आईं। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ताज्जुब से पूछा, हलीमा, अब आप बच्चे को क्यों ले आई हैं? आप ही की तो ख्वाहिश थी कि ये कुछ और मुद्दत आपके पास रहें। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ, मगर मेरा दिल हर वक्त खौफ में रहता है कि कहीं इन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, इसलिए मैं इन्हें आपको सुपुर्द कर रही हूँ। ये सुनकर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और ज़्यादा हैरान हुई और बोली, माजरा क्या है? तब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सारा हाल सुना दिया। दरअसल वो कई अजीबो गरीब वाक़यात देख चुकी थीं और इन्हीं वाक़यात की वजह से दिल में बेचैनी और परेशानी पैदा हो गई थी। फिर जब सीने मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ौरन वापस करने पर मजबूर हो गईं। दोस्तों, जिस घर में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए वहाँ रहमत और बरकत नाजिल हुई। हज़रत हलीमा के साथ भी ऐसा ही हुआ। कमज़ोर ऊँटनी सबसे आगे निकल गई, खुश्क ज़मीनें सरसब्ज हो गईं और दूध ना देने वाली बकरियां भर भर के दूध देने लगीं। ये हैं हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए रहमत। सुभान अल्लाह।